السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے مشکلات کے حل کا دروازہ کھول دے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وفا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ پرائیویٹ سکول مالکان فیس وصولی سے دستبردار نہ ہوئے، چھٹیوں کے باوجود والدین کو فیسیں ادا کرنے کے نوٹس پہ نوٹس بھجوائے جا رہے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان والدین ذہنی اذیت کا شکار ہو گئے۔ اسکول بند، عمارتیں خالی، بجلی کا بل دینے کی فکر نہ ہی کوئی اور جھنجھٹ، پھر بھی مالکان گھر بیٹھے طلبہ سے فیسیں بٹورنے پر بسید۔ کئی سالوں سے کروڑوں روپے کماتے اربوں پتی اسکول مالکان کو اپنی دکان بند ہوتی دکھائی دی تو جیسے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ ایسے طلبہ سے فیسیں بٹورنے پر بسید۔ کئی سالوں سے کروڑوں روپے کماتے اربوں پتی اسکول مالکان کو اپنی دکان بند ہوتی دکھائی دی تو جیسے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ ایسے آپے سے باہر ہوئے کہ قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بس ایک ہی دھن سوار ہے، کیسے بیچارے والدین کی گردن پر چھری رکھ کر گھر بیٹھے طلبہ کی اسکول فیسیں وصول کی جائیں۔ کرونا وبا اور لاک ڈاؤن سے پریشان والدین اسکول کی جانب سے فیس کے مطالبے پر سر پیٹ کر رہ گئے۔ حالات کے ستائے غریب والدین کہتے ہیں پہلے ہی روٹی پوری کرنا دشوار ہو رہا ہے، ایسے میں اسکول کی فیسیں کیسے ادا کریں؟ اسکول مالکان کو تو کوئی فکر ہی نہیں، بس لب ہلتے ہیں اور مطالبہ سامنے آ جاتا ہے، ساتھ ہی دھمکی بھی رکھی ہوتی ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ کرونا کے باعث روزگار کا بیڑا غرق ہو کر رہ گیا ہے۔ اسکول مالکان نے فیس مانگ کر والدین کو مزید تشویش میں مبتلا کر دیا۔ والدین کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مالکان کو فیس معاف کر کے والدین کا بوجھ کم کرنا چاہیے۔ جو ہے تو غریب عوام پہ آتا ہے، مطلب لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں، وہ پے نہیں کر سکتے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ جو ہے تو مطلب اپنی طرف سے سبسڈی دے، اور کچھ پرائیویٹ اسکول مالکان کو چاہیے کہ وہ بھی غریب عوام کو ریلیف دے اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ یہ تو بہت غلط ہے کیونکہ بچے گھر میں ہوتے ہیں، یہ لوگ فیس مانگتے ہیں نا، یہ تو بس بہت وقت سے ایسے ہو رہا ہے، جیسے کہ گرمی کی چھٹی کی فیس مانگتے ہیں تو اس وقت حکومت نے کچھ نہیں کیا، تو بس ابھی بھی یہ لوگ ویسے کر رہے ہیں کہ بچے گھر میں ہوتے ہیں یہ لوگ فیس مانگتے ہیں، تو بہت غلط ہے۔ بہت حکومت کو چاہیے کہ اس کے خلاف ایکشن لے۔ ناجائز مطالبہ کیا انہوں نے جی، ابھی لاک ڈاؤن دیکھیں، لوگوں کو روزگار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فیسیں کیسے زیادہ دیں؟ ابھی بھی جتنی فیسیں بقار ان کو چاہیے معاف کرے، غریب لوگوں کو بالکل فیسیں معاف کر دے، کیوں غریب لوگوں کا یہ بوجھ کم ہو جائے گا۔ ابھی یہ کہتے ہیں فیسیں زیادہ کرو، فیسیں غریب لوگ کہاں سے دیں گے؟ کاروبار کا حال برا ہے، ہر بندہ رو رہا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یہ کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے، تو فیسیں کہاں سے زیادہ دے؟ آپ خود انصاف کریں۔ تو اس لیے ہمیں ہے نا کہ ان ٹیچروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جن ٹیچروں کا مطلب چولہے جل رہے ہیں، اور ہے نا کہ ہماری اس کے اوپر فیسوں کے اوپر ان کے چولہے جلتے ہیں، تو ان کے بھی بچے ہیں چھوٹے، اگر ہم نہیں دیں گے تو وہ بھی ہے نا کہ مالکان پھر ان کو فیس کہاں سے، سیلریاں کہاں سے دیں گے؟ تو اس وجہ سے چاہیے کہ ہے نا کہ ہم اس سخت حالات میں اگر ہم غریب لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے محلے میں ہمسایوں کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ٹیچروں کا بھی خیال رکھیں جن کی وجہ سے ہمارے بچوں کی زندگیاں جو ہے نا وہ بہتر ہوتی ہیں۔ وزیراعظم کے آبائی ضلع میاوالی میں بھی پیٹرول نایاب ہو گیا۔ شہری پیٹرول کے حصول کے لیے در بدر پھرنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد آصف۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کے بعد ایک مرتبہ پھر سے پیٹرول نایاب ہو گیا۔ وزیر اعظم کے آبائی ضلع میاوالی کے شہری بھی پیٹرول کی نایابی کے سبب شدید ذہنی اذیت سے دوچار ہیں۔ پیٹرول جب سستا ہوتا ہے تو عوام ایک ایک بوند کو ترستی ہے، اور جب مہنگا ہوتا ہے تو اس وقت پیٹرول پمپ نہیں بند ہوتے۔ پیٹرول کی نایابی پر ضلعی انتظامیہ بھی خواب غفلت میں کھوئی نظر آتی ہے۔ سوشل میڈیا سے الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا کی چیخ و پکار کے باوجود انتظامیہ کی پیٹرول کے حوالے سے کہیں بھی کوئی کارروائی نظر نہیں آتی، جبکہ سوشل میڈیا پر شہری ضلعی انتظامیہ کی صحیح معنوں میں درگٹ بنا رہے ہیں۔ پاک پتن کی تحصیل عارف والا میں بھی پیٹرول کا بحران ہے۔ شہر اور مضافات میں پیٹرول پمپس مالکان نے پیٹرول کی فروخت روک دی ہے، جس کی وجہ سے شہری پیٹرول کے حصول کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ جاوید رضا بٹو کی رپورٹ۔ پیٹرول سستا کیا ہوا، شہریوں کی پہنچ سے ہی دور ہو گیا۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح عارف والا میں بھی پیٹرول پمپس مالکان نے پیٹرول کی فروخت بند کر دی۔ عارف والا شہر، قبولہ، مرلے چوک، رنگشا اور محمد نگر سمیت دیگر علاقوں میں پیٹرول نایاب ہو گیا۔ شہری پیٹرول کے حصول کے لیے رولنے لگے۔ صبح سے شام تک دھکے کھانے کے بعد اگر کہیں سے پیٹرول مل بھی جائے تو آدھے لیٹر پر ہی ٹال دیا جاتا ہے۔ پیٹرول سستا تو ہو گیا ہے لیکن مل نہیں رہا، کسی بھی پمپ سے نہیں مل رہا۔ پورے شہر میں خوار ہو کے آئے ہیں، کسی بھی پمپ سے پیٹرول نہیں مل رہا، نایاب ہو چکا ہے۔ اس سے اچھا تو پیٹرول مہنگا ہی رہتا، اگر پیٹرول سستا کرنا تھا تو پیٹرول مہیا بھی کریں، حکومت کو چاہیے۔
शहरी कहते हैं इससे तो बेहतर था पेट्रोल सस्ता ही ना होता, क्योंकि मिल तो रहा था। ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਬਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ, कद ना लेके जाइए। अगर हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर ही दिया तो इसकी फराहमी भी आवाम तक यकीनी बनाई जाए, ताकि शहरियों को पेट्रोल की किल्लत से पैदा होने वाली परेशानी से निजात मिल सके। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। मुल्क के दीगर शहरों की तरह अपर कोहिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की किल्लत बरकरार है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूबे के दीगर अजला की तरह जिला अपर कोहिस्तान में भी पेट्रोल की शदीद किल्लत बरकरार है। पेट्रोल की अदम दस्तियाबी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से आवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पेट्रोल की मसनूई किल्लत को खत्म करने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएं। डीजी खान के इलाके कोटचिट्टा में भी पेट्रोल नायाब हो गया। पेट्रोल पंप मालिकान 200 रुपए फी लीटर में पेट्रोल फरोख्त करने लगे हैं। कोटचिट्टा और उसके मजाफाती इलाकों में पेट्रोल नायाब हो गया। पेट्रोल पंप्स और एजेंसी मालिकान पेट्रोल की किल्लत का बहाना बनाकर शहरियों को लूटने लगे हैं। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स और एजेंसीज पर पेट्रोल 200 रुपए फी लीटर में ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि पेट्रोल ब्लैक पर महंगा फरोख्त करने वाले पेट्रोल पंप मालिकान और गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज के मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुल्क भर में पेट्रोल के उसूल के लिए शहरी मारे मारे फिर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि कहीं पेट्रोल दस्तयाब नहीं तो कहीं पेट्रोल मालिकान पेट्रोल देने की मुकर्रर कर दी। ये पेट्रोल का मसला है, आटे का मसला है और भी कोरोना वगैरह का मसला है, तो हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करके इस मसले को हल कर दें। और ये हर पैसों पंप में मिलते हैं, लेकिन और पंपों में कोई भी नहीं मिलता है, लेकिन मीटर लगे हुए आज बोलते नहीं है। क्यों नहीं डालते, क्यों एक्शन नहीं ले रहे? हम इतना भीड़ जमाए, देखो इतना भीड़ जमाए, हम बोतलों भी नहीं देते और 200 रुपये ज़्यादा नहीं डालते। हम काम कर रहे TCS वालों में, और मैं ड्यूटी करता हूँ सदर में, 1 घंटा खड़ा हूँ और फिर जाके पहुँच के वो ख़त्म हो गए। ये सब ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है। जो लोग बीमार आ रहे हैं डॉक्टरों के पास, अस्पताल जा रहे हैं, जो मुसाफिर आ रहे हैं अपने घरों पर, तो उनको सबको मुश्किलात हो रही है। जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो ये बेचते हैं। अब सस्ता हो गया, इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है और अब ये नहीं बेच रही है, तो बिल्कुल नाइंसाफी है, बिल्कुल। हाँ, ये देखें, मैं आज सुबह दफ्तर के लिए घर से निकला हूँ 8 बजे और सारे पेट्रोल पंप छान मारे हैं, लेकिन मुझे पेट्रोल नहीं मिल रहा। अभी मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मोटरसाइकिल में। अभी मैं पैदल गाड़ी के साथ पैदल जा रहा हूँ। मुल्क भर में इस वक्त 48 अजला में टिड्डी दल मौजूद। बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा 9, पंजाब 2 और सिंध के 3 अजला मुतासर हुए हैं। मुल्क भर में टिड्डी दल के वार जारी। NDMA की जानब से तफसीलात जारी कर दी गई। चारों सूबों के 48 अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं। NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान के 33 अजला, पंजाब के 2, सिंध के 3 और KPK के 10 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। कौमी इदारा बराए नागहानी सूरत हाल के मुताबिक बलोचिस्तान में खिजदार, आवारान, नौशक्की, चागी, ग्वादर, अथल, कैच, पंजगोर, खारान और कोयटा के अलावा दीगर अजला भी मुतासर हैं, जबकि KPK में डेरा इस्माइल खान, टांग, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, लकी मरवत, कर्क, कोरम, औरकजई और खैबर के अजला मुतासर हैं। NDMA के मुताबिक पंजाब में डेरा गाजी खान और मियाँ वाली में टिड्डी दल मौजूद है, जबकि सिंध में मीरपुर खास, थरपारकर, टंडू अलायार, जामशोरो और शहीद बेनज़ीर आबाद में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। दूसरी जानब टिड्डी दल के मुतासर इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन भी जारी है। NDMA के मुताबिक 1122 टीमों ने लोकेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,55,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ, जबकि 24 घंटों में 4,803 हेक्टेयर रकबे का टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात के जरिए स्प्रे किया गया। NDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में 3400 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया, पंजाब में 30 हेक्टेयर, खैबर पख्तूनख्वा में 1100 हेक्टेयर रकबे की ट्रीटमेंट की गई। अब तक पूरे मुल्क में 5,29,300 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। NDMA के मुताबिक पेशीन में 340 हेक्टेयर रकबे पर हवाई जहाज के जरिए कीमियाई स्प्रे भी किया गया। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद।
कश्मीर में टिड्डी दल ने आम, कपास, केले समेत दीगर सब्जियों की फसलें तबाह कर दी, जिससे काश्तकार परेशान हैं। काश्तकारों ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए हुकूमत से फौरी तौर पर स्प्रे करवाने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे अख्तियार अली। टिड्डी दल की कश्मीर भर में यलगार जारी। गुज़िश्ता माह में भी टिड्डी दल के 5 बार हमले से आम, कपास, केले, सब्जियां व दीगर फसलें चट कर दी हैं। कश्मीर में टिड्डी दल ने सब्जियों को भी मुकम्मल तौर पर चट कर दिया है। काश्तकारों को सब्जियों की फसल तबाह होने से लाखों का नुकसान हुआ है। सब्जी उगाने वाले ठेकेदारों का कहना था कि पहले लॉकडाउन से परेशान थे, अब टिड्डी दल ने भिंडी, बैगन, केले की फसल को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। सारा भिंडी खा वांगन खा गए, करेले खा गए, सारा खा गए। बहुत हमने किया है, फिर हमारा जान नहीं छोड़ा, हम गरीब क्या करें। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि टिड्डी दल से बचाव के लिए स्प्रे करवा कर हमें मजीद नुकसान से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ अख्तियार सोलंकी, सद न्यूज़ कश्मीर। नवाब शाह में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला कर दिया, जिससे काश्तकार परेशान हैं और टिड्डी दल को अपनी मदद आप के तहत भगाने में मसरूफ हैं। जिला शहीद बेनजीराबाद में इंसदाद टिड्डी दल के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से किए गए स्प्रे भी बेअसर साबित हुए। टिड्डी दल लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें चट कर गईं, जिससे काश्तकार परेशान हैं और अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। टोबा टेक सिंह के शहर कमालिया में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा ज़राअत असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अकरम की ज़ेर सदारत टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जिम्मेदार साहबान के साथ साथ नंबरदारों ने शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अकरम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐप मुतारिफ करवाई गई है। अगर किसानों को कहीं भी टिड्डी दल नजर आता है तो उसकी इतला महकमा ज़राअत को दें, जिसके बाद महकमाना कार्रवाई की जाएगी ताकि टिड्डी दल से निपटा जा सके। असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमाली। कोरोना फैलाव और इसके बाद खतरात के पेश नजर मुल्क भर में हिफाजती इंतजाम पर अमल दरामद करवाने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर बलोचिस्तान में 128 दुकानें सील की गईं, 57 गाड़ियां बंद की गईं या जुर्माने किए गए। पंजाब में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 792 दुकानें, 4 सनती यूनिट सील, जबकि 610 गाड़ियां बंद कर दी गईं। बलोचिस्तान में SOPs की 294 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। SOPs पर अमल दरामद न करने पर 128 दुकानें सील कर दी गईं। 57 पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को जुर्माना, आर्जी तौर पर बंद और तंबीह की गई। सिंध में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। KPK में SOPs की 406 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। 2 दुकानों और 22 ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। KPK में 1241 अफराद को SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में खिलाफ वर्जी के 153 केसेज रिपोर्ट हुए। 43 दुकानों और 47 गाड़ियों को जुर्माना किया गया। इस्लामाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी की 44 शिकायत मसूल हुई। 23 दुकानों, 2 फैक्ट्रियों और 11 गाड़ियों को जुर्माना और सील किया गया। आजाद कश्मीर में SOPs की खिलाफ वर्जी के 379 केस सामने आए। 55 दुकानों और 87 गाड़ियों को जुर्माना और सील किया गया। जहलम में पुलिस हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहर्रिक हो गई। डबल सवारी और मास्क न पहनने वालों को भारी जुर्माने आयद किए गए। जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह जेल में भी लॉकडाउन की वजह से डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन ताहाल शहरी इसकी पाबंदी नहीं कर रहे। इंतजामिया ने फुल फोर एक्शन लेते हुए मास्क की पाबंदी न करने वाले और डबल सवारी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माने करना शुरू कर दिया। इस मौका पर शहरियों का कहना है मास्क पहनने की पाबंदी हमें करनी चाहिए, लेकिन कुछ शहरी जो पाबंदी नहीं कर रहे उनको जुर्माना करके इंतजामिया ये बावर करा रही है कि मास्क को जरूर यूज करे। और इसके साथ जो डबल सवारी की पाबंदी नहीं कर रही, इंतजामिया ने उनके खिलाफ फुल फोर एक्शन लिया है। इसके साथ शहरी जो है एहतजाज करते भी नजर आए। उनका कहना था कि हम खाएं या जुर्माने दें, और इसके साथ उन्होंने भरपूर एहतजाज करते हुए कहा कि हम मास्क की पाबंदी तो करते हैं, लेकिन जरूरी काम से अगर कोई निकलते हैं तो मास्क भूल जाते हैं, लेकिन इंतजामिया हमारा चलान कर रही है। देखो पेट्रोल स्टेशनों पे क्या हाल है, लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है, ये ड्रामा लगाया हुआ डबल सवारी का इन्होंने। DPO जेलम का कहना था कि मास्क की कोई पाबंदी नहीं करेगा तो उसको जुर्माना किया जाएगा, और इसके साथ जो डबल सवारी की पाबंदी भी नहीं करेगा उसको भी जुर्माना किया जाएगा। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़ जेलम। कैसा कोरोना, कौन सी SOPs? ओकाड़ा के शहर शेरगढ़ के सस्ता बाजार में हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। सैकड़ों की तादाद में खवातीन हुकूमती अहकामात को पसेपुश डालकर खरीदारी करने लगी। हफ्तावार लगने वाले सस्ते बाजार ने कोरोना के लिए किसी किस्म के इंतजामात नहीं किए। इस तरह खुले आम आवाम के तहरीर से अहले इलाका में तशवीश की लहर दौड़ गई और अहले इलाका ने DC ओकाड़ा और मुकामी इंतजामिया से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा। सकलैन चौधरी के साथ उसामा अली जपा, सच न्यूज़ शेरगढ़।
कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में रेस्क्यू एहलकार फ्रंट लाइन पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लोधरा में रेस्क्यू एहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कोरोना सेफ्टी किट्स जारी कर दी गईं। काजिम अब्बास की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में रेस्क्यू 1112 लोधरा की टीमें फ्रंट लाइन पर नबरत आजमा है। रेस्क्यू 1112 एहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इमरजेंसी में काम करने वाले तमाम रेस्क्यू एहलकारों को कोरोना सेफ्टी किट्स जारी कर दी गई हैं। रेस्क्यू 1112 लोधरा के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद का इस मौके पर कहना था कि कोरोना वायरस के फैलाव के मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर इमरजेंसी में काम करने वाले तमाम रेस्क्यू एहलकारों के लिए हिफाजती किट्स जारी की गई है, ताकि रेस्क्यू एहलकार अपनी सेफ्टी को यकीनी बनाते हुए आवाम को सर्विस की फराहमी इस जोश जज्बे के साथ जारी रखें। इनका मजीद कहना था कि डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर के विजन के मुताबिक रेस्क्यू एहलकार किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में आवाम की खिदमत के लिए हमवक्त तैयार हैं। फील्ड में काम करने वाले रेस्क्यू एहलकारों को हिफाजती लिबास में मलबूस देकर आवाम हरगिज खौफजदा न हो। इन तमाम अक़दामात का मकसद कोरोना के फैलाव को रोकना है और आवाम को चाहिए कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत की तरफ से जारी करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा हो, ताकि कोरोना वायरस से महफूज रह सके। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज़, लोधरा। सिंध के शहर टंडोला यार में पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं इम्तियाज हुसैन। टंडोलियार के पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पैरामेडिकल स्टाफ के रहनुमाओं ने हुकूमत सिंध को अल्टीमेटम देते हुए फौरी तौर पर कोरोना वायरस के पेश नजर सेफ्टी किट्स, टाइम स्केल, रिस्क अलाउंस, तनख्वाह हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस 20% से बढ़ाकर 50% करने का मुतालबा कर दिया। जनरल ड्यूटीज करने वाले और उनको अलाउंस से महरूम किया जा रहा है, तो वो ड्यूटी तो कर रहे हैं ना, हमें तो नहीं पता है कि ये जो 50 अफराद आ रहे हैं, ओपीडी का जमघटा लगा हुआ है, उसके अंदर कितने कोरोना पेशेंट हैं। 26 दिन मैं आइसोलेट में रहा हूँ, मुझे पता है कि कितनी अजियत से गुजरना पड़ता है। हर स्टाफ का बंदा वो रिस्क पे है। हमारे जो बंदे जो रिस्क पे है, जैसे पट्टे वाला भी हमारा रिस्क पे है। इन्होंने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वजीर सेहत और दीगर बाला हुक्म से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हमारे मुतालबात फौरी हल किए जाएं, वरना एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज़, टंडोला यार। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जहां दूसरे कारोबार मुतासर हुए हैं, वहीं चूड़ियों के कारोबार से वाबस्ता अफराद भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। देखिए एहतशाम अली की रिपोर्ट। चूड़ी हमारी सकाफत का एक अहम जुज़्व है। हमारी सकाफत के रंग चूड़ी के रंगों की तरह रंगारंग हैं। पाकिस्तान में चूड़ी की सनत की बुनियाद 1948 में पड़ी। आज लाखों की तादाद में मर्द खवातीन इस सनत कारोबार से वाबस्ता हैं। एक चूड़ी तैयारी के मराहल में 70 से ज्यादा कारीगरों के हाथों से गुजरकर तैयार होती है। कोरोना लॉकडाउन ने रवां साल सीजन में कांच की चूड़ियों की सनत को संगीन बहरान से दो चार कर दिया और चंद माह के दौरान चूड़ी की सनत और कारोबार से वाबस्ता मेहनत कशों की परेशानियों में कई गुना इजाफा हुआ है। चूड़ी का काम बिल्कुल फेल हो चुका है, जितना 10 साल पहले 12 साल पहले था ना, इतना नहीं है। पाकिस्तान में बनी चूड़ियां दुनिया भर में मशहूर हैं और इस शोबे को घरेलू सनत का दर्जा हासिल है, जिससे लाखों की तादाद में मर्द खवातीन का रोजगार वाबस्ता है। लेकिन कोरोना वायरस की वबा ने इस सनत से वाबस्ता मेहनत कशों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। चूड़ियों से वाबस्ता सनत में छोटे मैन्युफैक्चरर्स का हुकूमत से अपील है कि दूसरे कारोबारों की तरह हमारे लिए भी कोई इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए। मलिक एहतशाम अली, सच न्यूज़, साहिवाल। लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू, 4 की तहसील शब कद्र में भी मुनाफाखोर ने अशिया खुरनोश के मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए, जिससे शहरी परेशान हैं। सैयद दार शाह की रिपोर्ट। तहसील शब कद्र बाजार में अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में साख्ता इजाफे के बायस गरीब अवाम अशिया खरीद नहीं सकते। घी, आटा, चीनी, गोश्त, दूध, दही, फल और सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने गरीब अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। गरीब और मुतवस्सित तबके के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा करके अपने मंशूर से इनहिराफ किया है। पूरी पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, इसी वजह से शब कद्र बाजार में भी महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। हुकूमत के आए रोज़ महंगाई के ऐलानात महकमा खुराक और ज़िली इंतज़ामिया का कारपेरोशों को कुल्ली चुटी देकर मनमाने नरखों पर अशियाई ज़रूरियात की फ़रोख्त ने गरीब आवाम की ज़िंदगी तंग कर। मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी पूरी करके रोज़ाना की बुनियाद पर सख्त चेकिंग का निज़ाम कायम करे, ताकि आवाम को सुकून मिल सके। कैमरा टीम के साथ सैयद नादर शाह, न्यूज़, तहसील शब कद्र। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर पेशावर के शहरी भी हुकूमत से नाला हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। इमरान खान आगे बंद करके यकीन क्यों कर रहे हैं? वो मैदान में क्यों नहीं उतर रहे?
वो मेरे जैसे मतलब रोड पे आओ ना, देखो ना, दुकानदारों से पूछो, आम आवाम से पूछो। तुमको जो जहांगीर तरीन बोलेगा तो वो मानेगा, तुमको जब वजीर आला के बोलेगा कि कुछ ओके है, सब कुछ ओके तब होगा ना जब आपको सब रियलिटी नजर आएगी। पिशावर का क्या बनेगा? पिशावर में तुम पूछते नहीं हो कब आए, पिशावर के बाजारों में तुम घूमे हो या आकर पूछा हुआ है क्या रेट चल रहा है क्या नहीं, खाली सीट पर बैठे हो, स्वाद की बात कर रहे हो, स्वाद में ये है, स्वाद में पिशावर का वजीर आला हो, खाली स्वाद के तो नहीं हो। चाहिए पिशावर में भी आकर देखो घर के क्या हालात चल रहे हैं अंदर पिशावर के। बहुत महंगाई हो गई है, गरीब आदमी सफेदपोश आदमी खत्म हो गया है, समझो कि कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग कर्जदार दिन पर दिन कर्जदार होते हैं, सब घर में रोना है, कर्जदारी है। हुकूमत के लिए एक चैलेंज है, हुकूमत को चाहिए कि पहले तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कारोबार ख़राब हो गए हैं, माशी लोग जो ख़राब हो गए हैं, कारोबार बहुत बिल्कुल ऐसे रह गए कि कुछ भी नहीं होता। और दूसरी तरफ महंगाई है तो सब सारा जोर आवाम पर है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। लिया के इलाके फतेहपुर में फूड इंस्पेक्टर ने दुकानों पर छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई गंदम और चीनी कब्जे में ले ली। लिया में फूड इंस्पेक्टर ने पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए अड्डा टेल इंडस्ट्रीज की दुकानों पर छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई 1100 थैला गंदम और 600 थैला चीनी बरामद करी। इस मौके पर फूड इंस्पेक्टर राना अब्दुल सत्तार का कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खानेवाल के शहर सराय सिद्धू का अकलौता लेडीज पार्क खंडर बन गया। पार्क में मौजूद झूले टूट गए हैं जबकि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। सैयद अली रजा नकवी की रिपोर्ट। बल्दिया अमले की मुजरमाना गफलत से शहर का अकलौता लेडीज पार्क खंडर बन गया। शहर सराय सिद्धू का कोई परेशान हाल नहीं है। पार्क में मौजूद झूले टूट चुके, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। गंदी जड़ी बूटियों ने पार्क को अपनी लपेट में ले रखा है। पार्क को आवाम के लिए बंद करके बल्दिया की तरफ से पार्क को वेयर हाउस और गद्दा रेडियां खड़ी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ साथ ही बल्दिया सराय सिद्धू दफ्तर है जिनकी गफलत से एक खतीर रकम 10 लाख से तफरीक के लिए बनने वाला पार्क खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। अवामी समाजी हलकों का डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी और एसी कबीरवाला से पार्क को असल हाल में बहाल करके अवाम के लिए खोलने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रजा नकवी, सच न्यूज, सराय सिद्धू। कबीरवाल के नवाही इलाका बस्ती लालवाला में बिजली की लटकती हाई वोल्टेज तारें इलाका मकीनों के लिए बबाले जान बन गईं। अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट। कबीरवाला के नवाही इलाका बस्ती लालवाला में पिछले 1 साल से बिजली की हाई वोल्टेज तारें ट्रांसफार्मर समेत मकान की दीवार से आ लगी हैं, जिसके बायस दीवारों में अर्थ आ जाने से बच्चों समेत बड़ों में भी करंट लगने के खतरात सर पर मंडला रहे हैं। कई दफा गए हैं वापडा ने मिन्नतां कीतियां ने जाके, एसडीओ ने भी आखिया है जाके साडा मसला है तो सानू हल करो। कई जानवर चरे मर गए ने। और शॉर्ट सर्किट के बायस बिजली की आंख मचोली रोजाना का मामूल बन गया है। गिरे हुए मेन पोल से लुढ़कती हुई हाई वोल्टेज तारें मकान की छत से होते हुए दरख्तों से टकराती हुई जमीन के इतने नजदीक आ गई हैं कि करीब से गुजरने वाले बच्चों के हाथ आसानी से इन तार तक पहुंच जाते हैं और कई दफा जानवर करंट लगने से हलाक हो चुके हैं। 1.5-2 साल हो गए ते निक निके साडे बच्चे नु तो पक्खू बांधे आग बलदी तारा सड़दी 1.5 साल हो गई है। जिकी हुई तारा सिर निवा के तले टपना पौंदा है। अहले इलाका का कहना है कि बड़ी मुश्किलों से वापडा हुकाम को खर्च पानी देकर नए खंबे तो लग गए हैं, लेकिन इन पर तारे बदलने के लिए माल पानी के चक्कर में वापडा मुलाजमीन फिर चशमपोशी इख्तियार किए हुए हैं। हमारे तकरीबन 1.5 साल से तारे नीचे गिरी हुई हैं, तो ना हमारी लेबर इधर काम कर रही है, जिसकी वजह से हमें तकरीबन 1.5 साल का ठेका हम जेब से दे चुके हैं। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है और वापडा वाले से भी दरखास्त की, अभी तक हमारा कोई हल नहीं हुआ है इस बारे में। अहले इलाका ने वापडा के मजाज अफसरान से जल्द अज जल्द तारे बदलने की अपील की है ताकि इस अजाब से निजात मिल सके। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। खानेवाल इलाके कच्चा खूह के बुनियादी मदरसे में सहूलियात का फुकतान है। डॉक्टर ड्यूटी से गायब जबकि रिहायशी क्वार्टर्स में मवेशियों ने डेरे डाल लिए हैं। उमर हयात सहू की रिपोर्ट।
तकरीबन 50,000 की आबादी पर मुश्तमिल 14 गोलाबाद के बासी साइंस टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी सेहत के शोबे में बुनियादी सहूलियात से यकसर महरूम है। गोलाबाद का बुनियादी मरकज सेहत के ऐशी क्वार्टर नशइयों की हमाजगाह और जानवरों के डेरे हैं। वॉचमैन की अदम दिलचस्पी से दरवाजे खिड़कियां चोरी हो चुके हैं। मर्ज में महकमा सेहत की जानिब से हमला तो तैनात है, मगर ड्यूटी पर न होना महकमा की बेहसी का मुंह बोलता सबूत है। डॉक्टर्स ड्यूटीज करना अपनी शान की तौहीन समझते हैं। मरकज सेहत को डिस्पेंसर क्रैम पर छोड़ दिया गया है। इलाका मकीन महंगा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने पर मजबूर है। 12 से 14 चकूक है, जहां पर एक ही सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें इंतहाई अमला गैर जिम्मेदाराना है। यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, सहूलतों का फुकंदान है, कोई सहूलत मौजूद नहीं है। बुनियादी मरकज सेहत गोलाबाद कई चकूक की हजारों नफूस की आबादी के लिए मुख्तस है, लेकिन सहूलियात के फुकदान की वजह से मुश्किलात का सामना है। बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत क्वेटा में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत का मसला फिर शिद्दत अख्तियार कर गया। अब्दुल गनी काकड़ की रिपोर्ट। वादी क्वेटा में मनसूबाबंदी के फुकदान और मुतल्लिका सरकारी महकमों की बेहिसी के बायस शहर में पानी की अदम दस्तियाबी का मसला यूं तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस अहम नौइयत के अवामी मसले ने शहर में अब इस कदर शिद्दत इख्तियार कर ली है कि अक्सर इलाकों में शहरी पानी के बूंद बूंद को तरसने पर मजबूर हो गए हैं। शहरी कहते हैं कि सरकारी ट्यूबवेलों से पानी की बाकायदगी से सप्लाई न होने के बायस उन्हें मजबूरन महंगे दामों निजी वाटर सप्लाई स्कीमों से पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पीने का पानी तो यहाँ पे क्वेटा में बिल्कुल नापैद हो गया है। दूर दूर से हम इस फिल्टर पर आते हैं, इधर से भरते हैं। अभी मैं खुद सैलाय टाउन से आया हूँ, वहाँ के बरबोर सारे खुश्क हो गए। छोटा मोटा अगर गुजारा होता है तो वहाँ का मकामी काउंसलर और वो जो पानी के सुपरवाइजर होते हैं उनका गुजारा हो जाता है, ज़रूरत पूरी हो जाती है, घरों को नहीं मिलता। पानी आ रहा है टैंकर माफिया की तरफ से आ रहा है। टैंकर माफिया अपना जो है पैसे कमा रही है और डबल पैसे चार्ज कर रही है। इसकी वजह से आम जो गरीब आवाम है उसको मुश्किलात का सामना है। क्वेटा के मरकजी हिस्से समेत नवाही इलाकों में पानी की इस शदीद किल्लत की एक अहम वजह शहर में कायम वो गैर कानूनी वाटर सप्लाई स्कीमें भी हैं जो कमर्शियल बुनियादों पर पानी निकाल कर आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रही हैं। 1 साल से ऊपर हो गया है, काउंसलर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं वासा के पास जाए, वासा के पास जाते हैं तो आप बोलते हैं काउंसलर को पकड़ो, उन्हों को बोलें, वो आएंगे एप्लीकेशन देंगे। अभी मजबूर हम किसी के पास नहीं जाते हैं, अल्लाह के आसरे पे छोड़ दिए। पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने एहतजाज भी किया है, मगर मुतल्लिका हुकाम आवाम के इस दरीना मसले के हल के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, क्वेटा। रुझान के शहरी गर्मी के मौसम में पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों के आला हुकाम से पानी की फराहमी का मुतालबा है और यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। मलिक तुफैल की रिपोर्ट। रुझान में म्युनिसिपल कमेटी की लापरवाही की वजह से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। रुझान सिटी के तमाम वार्डों में शहरी पीने के पानी से महरूम। घरों में पानी न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में भी पीने के पानी मुयसर नहीं है। म्युनिसिपल कमेटी में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। अफसरान समेत मुलाजमीन घर बैठे मुफ्त में तनख्वाहें वसूल करने लगे। तहसील इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वाटर सप्लाई की फहमी यकीनी बनाई जाए और पानी के प्रेशर को भी तेज किया जाए। कैमरामैन मलिक उजैर के साथ साची न्यूज, रुझान। मुजफ्फरगढ़ की तहसील चौक सरवर शहीद की बेशतर सड़कें खस्ता हाल हैं, जिसकी वजह से शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। चौधरी साजिद अली की रिपोर्ट। शाहराहों सड़कों की बेहतरी से गाड़ी का पहिया तेज चलता है, जिससे मुल्क तरक्की करता है, मगर बदकिस्मती से चौक सरवर शहर में तेज रफ्तारी तो अपनी जगह गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। शहर की टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए जहमत बन चुकी हैं। सुस्त रफ्तार सफर करती गाड़ियां पथरीले रास्ते से किसी पहाड़ी इलाके का मंजर नहीं, बल्कि चौक सरवर शहर की सड़कें हैं जिनकी मरम्मत और तमीर नौ की बातें की जाती हैं, मगर जमीनी हकैक पत्थर और मिट्टी की धुंध के सिवा कुछ भी नहीं है। ये मेन रोड MM रोड है, मेन रोड है। यहाँ पर हादसा मकबूल बन चुके हैं। हमारी दरखास्त है कि ये रोड तमीर आ जाए। रोड जड़ी है ना चौक मुंडे दी बिल्कुल ही टूट फूट का शिकार है। एक पुली मोहम्मदाबाद मक्का टाउन के सामने उन्हें कई दफ़ा हादसे थे, औरतें डटन जख्मी थे। आने जाने वाली मसला है, हमारे दुकानदार हैं, हम परेशान होते हैं, मरीज आते जाते हैं। खस्ता हाल सड़कों की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने समेत हादसा मामूल बन चुके हैं। जगह जगह टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए दर्दसर बनी हुई हैं। चौक सरवर क्षेत्र के शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और महकमा हाईवे से मुतालबा किया है
کہ چوک سرور شہید کے مین روڈ کی تعمیر و مرمت کم جو ہے وہ جلد از جلد کروایا جائے تاکہ مختلف حادثات سے جو بچا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری ساجد علی، سچ نیوز، چوک سرور شہید۔ رحیم یار خان میں بارش کے بعد شہری سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا جس سے شہریوں کی آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حسن رحمانی کی رپورٹ۔ رحیم یار خان شہر میں گزشتہ رات ہونے والی چند منٹوں کی بارش اور آندھی نے ضلع انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بارش کے باعث مختلف انڈر پاس پانی سے بھرے، بیشتر موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں پھنس گئیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ پانی جمع، تیز ہواؤں کے باعث گرنے والے درخت کو بھی نہ اٹھایا جا سکا جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ انڈر پاسز پر جمع ہونے والے پانی سے گزرنے والے شہری نہر کا منظر پیش کرنے والے پانی سے گزرنے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ فی الفور ہنگامی بنیادوں پر کام کرے تاکہ لوگوں کی مشکلات میں کمی آئے۔ دریائے سندھ نے کوٹدو کے مقام پر تباہی مچا دی۔ توسا بیراج پر دریائی کٹاؤ جاری ہے جس کے باعث بستیوں اور زرعی زمین کے ساتھ ساتھ کروڑوں کی لاگت سے بننے والی حفاظتی سٹرز بھی دریا برد ہو گئے ہیں۔ محمد اسحاق کی رپورٹ۔ دریائے سندھ توسا بیراج کے مقام پر ڈاؤن سٹریم RD 532 موضع پہاڑ غیر مستقل میں دریائی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا۔ بستیوں اور قیمتی زرعی اراضی کا کٹاؤ تیزی سے جاری ہے۔ 2010 سے اب تک دریائے سندھ ہزاروں ایکڑ زرعی زمینوں اور سینکڑوں بستیوں کو نگل چکا ہے۔ دریائی کٹاؤ میں تیزی کے باعث مزید بستیاں دریا برد ہو رہی ہیں۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے قیمتی اراضی اور بستیوں کو بچانے کے لیے بنائے گئے 4 حفاظتی سٹڈ بند بھی دریا برد ہو گئے۔ متاثرین کا کہنا تھا قیمتی اراضی اور گھر دریا برد ہونے سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ دریا نے دیگر بستیوں کا رخ کر لیا۔ دریائی کٹاؤ کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے گئے۔ دریائی کٹاؤ کو روکنے کے لیے بنائے گئے 4 سٹڈ بند لینتھ کم ہونے سے دریا برد ہو گئے۔ 4 سے 5 بستیوں کے دریائی کٹاؤ تیزی سے جاری ہے جس کو روکنے کے لیے کوئی بھی بند موجود نہیں ہے۔ متاثرین نے حکومت پنجاب اور ضلع انتظامیہ سے زمینی کٹاؤ کو روکنے اور دیگر بستیوں کو دریا برد ہونے سے بچانے کے لیے ایمرجنسی طور پر حفاظتی بند بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں فش فارم میں نہاتے ہوئے 2 بچیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ شجاع آباد کے علاقے سکندر آباد میں فش فارم میں نہاتے ہوئے 2 بچیاں پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر دونوں بچیوں کو ایک لاش ورثاء کے حوالے کر دی ہے۔ ڈوبنے والوں میں 8 سال کی سمرین اور 7 سال کی روبینہ شامل ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان کے پہاڑوں کے درمیان فورٹ منرو میں جاپان کے تعاون سے تعمیر ہونے والا سٹیل پل مکمل ہو گیا۔ منصوبے پر 13 ارب 75 کروڑ روپے لاگت آئی ہے۔ محمد علی میرانی کی رپورٹ۔ ڈیرہ غازی خان گردو پاس فورٹ منرو پر سٹیل پل اور برانچز کی تکمیل مکمل۔ کوہ سلیمان کے پہاڑوں کے درمیان 8 مختلف سٹیل پل جاپان کے تعاون سے تعمیر کیے گئے جس پر 13 ارب 75 کروڑ سے زائد کی لاگت سے تعمیر ہونے والا ایشیا کا دوسرا بڑا سٹیل پل پاکستان میں پہلی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس سے پہلے 19ویں صدی میں انگریز نے ملتان ڈیرہ غازی خان سے فورٹ منرو اور پھر بلوچستان جانے کے لیے اس سڑک کی تعمیر کرائی تھی جسے نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے N70 کا نام دیا تھا، جس پر 7 انتہائی خطرناک موڑ تھے جہاں پر بڑے ٹرالے اور ٹرکوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جبکہ کئی گھنٹے ٹریفک بھی جام رہتی تھی۔ تاہم نون لیگ دور حکومت میں جاپان کی جانب سے فنڈنگ کے بعد اس پل تعمیر کرنے کا کام شروع ہوا جنہیں چند ماہ قبل ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا جس کی تکمیل اب مکمل کر لی گئی ہے۔ فورٹ منرو جو ایک صحت افزا مقام ہے، یہاں ہم گھومنے پھرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ پہلے راستہ بہت ہی دشوار گزار ہوتا تھا، ٹریفک کا بہت زیادہ رش رہتا تھا، موڑ بہت تنگ تھے۔ اب جو ہے نا سٹیل بریجز بننے کی وجہ سے راستہ کافی آسان ہو گیا ہے، روڈ بننے کی وجہ سے سہولت ہو گئی ہے۔ سٹیل پل سے پنجاب اور بلوچستان کے درمیان فاصلے سمٹ گئے ہیں، بلکہ گوادر بندرگاہ تک پہنچنے کے لیے بھی ایک اہم راستہ بن گیا ہے۔ جاپان ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس پہاڑی 8 مختلف سٹیل پل تعمیر کیے ہیں جس سے بڑے ٹرالے اور ٹرکوں کو گزرنے میں انتہائی آسانی ہو گئی ہے۔ اس روٹ پر موٹر وے M10 بنانے کی بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین ریحان علی کے ساتھ محمد علی میرانی، سچ ٹی وی ڈیرہ غازی خان۔ سچ ٹی وی کی نیکی کی ٹوکری کو شہر شہر سراہا جا رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ اس مشکل دور میں تھوڑی سی ہی صحیح کسی مستحق کی مدد کسی نعمت سے کم نہیں، دوسروں کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ سچ ٹی وی والوں نے جو یہ اپنا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے نیکی کی ٹوکری، یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ سچ ٹی وی کی اس کاوش کو میں اور پورا پاکستان سلام پیش کرتا ہے۔ سچ نیوز کی طرف سے بہت اچھی کاوش ہے غریبوں کے
ریلیف کے لیے کہ نیکی کی ٹوکری، ہم اگر 4 روٹیاں لیتے ہیں تو ایک اس میں یا 2 غریبوں کو دے دیں تو اس سے بڑا ریلیف ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، اور یہ سچ نیوز کی مہربانی ہے کہ یہ سارا کچھ کریں۔ جی دیکھیے جی، ہم سچ نیوز کا بہت مشکور ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی کوش کی وجہ سے آج جگہ جگہ پر نیکی کی ٹوکری جو رکھی جا رہی ہے، جہاں پر لوگ بالخصوص غریب لوگ ہیں جو ڈار ہیں، وہ اپنی وہاں سے روٹی جتنی کو حسب ضرورت ہے وہ اپنی روٹی وہاں سے لے سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو سچ نیوز کی کاوش ہے نیکی کی ٹوکری، کوئی بھی بندہ اگر کوئی 4 روٹیاں لیتا ہے، 5 روٹیاں لیتا ہے، 6 روٹیاں لیتا ہے، تو اگر ایک روٹی کے پیسے اس کی سچ کی نیکی کی ٹوکری میں ڈال آتا ہے تو اسے کوئی غریب کھانا کھا لیتا ہے، بہت اچھی کاوش ہے، اس پہ ہونا چاہیے۔ سچ نیوز کی یہ ایک اچھی کاوش ہے کہ اگر ہم 5 روٹیاں لیتے ہیں اور ایک روٹی اگر ہم اس کے پیسے کسی غریب آدمی کو دے دیتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور سچ نیوز کی ایک بہت بڑی کاوش بھی ہے جس کے ذریعے غریب عوام کو کچھ کھانے کو مل سکتا ہے۔ سچ ٹی وی چینل نے نیکی کی ٹوکری کا جو ایک قابل تحسین سلسلہ شروع کیا ہے وہ نہ صرف قابل ستائش ہے بلکہ دیگر لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور ان کا بھرپور انداز سے ساتھ دینا چاہیے۔ سچ ٹی وی نے جو سلسلہ شروع کیا ہے نیکی کی ٹوکری کا، میں انہیں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ سفید پوش لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور حکومت کے لوگ اور این جی او اور سیاستدان سے بھی گزارش ہے وہ بھی اسی طرح سفید پوش لوگوں کی ہیلپ کریں۔ جو غریبوں کی ہمدردی کے لیے اور غریبوں کی امداد کے لیے یہ جو نیکی کی ٹوکری کا سسٹم رکھا ہوا ہے، تو مہربانی کر کے اس نیکی کی ٹوکری میں اپنا حصہ ڈالیں، میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گا۔ سچ ٹی وی نے جو یہ ایک بہت اچھا اقدامات نیکی کی ٹوکری کو سر انجام دیا ہے، ہم ان کے اس احسن اقدام کو سراہتے ہیں، اس سے غریب سفید پوشہ لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ کی ٹوکری دائی تک انتظام کیتے انہیں کیتے غریب عوام کو جے رہنے سے بہت اچھا ریلیف مسی، انہیں کو دور ٹائم کھانا بھی مل ویسی، یہ سچ ٹی وی والے نے بہت شکریہ ادا کرنے ہیں۔ باولپور کے شہر مبارک پور میں گرمی میں پانی ٹھنڈا رکھنے کے لیے مٹی کے گھڑوں کی مانگ بڑھ گئی ہے، دیکھیے یاسر ناج کی رپورٹ۔ گرمیاں کے شروع ہوتے ہی اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ شہر یا دیہات، گرمیوں کا سیزن شروع ہوتے ہی اس قدرتی فریزر گھڑوں کی مانگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ پوری کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس قدرتی فریزر گھڑوں کی مٹی کا گھڑا ہر امیر اور غریب کی پہنچ ہے۔ رات بھر گھڑے میں رکھے پانی میں مٹی کی قدرتی خوشبوؤں کے علاوہ ٹھنڈے ہونے سے پیاس کی شدت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نسل در نسل مٹی کو سونا بنانے والے کمبھار مٹی سے بنائی ایشیا کی ڈیمانڈ موجود ہے۔ خاص قسم کی چیکی مٹی کو گوند کر مہارت کے ساتھ سامان کی تیاری سے لے کر آگ کی بھٹی میں پکانے تک بہت زیادہ محنت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی دوران تھوڑی سی غفلت بھی ساری محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔ شہر یا اور دیہات کی مختلف دکانوں پر یہ سامان فروخت کیا جاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر نائچ، سچ نیوز، مبارک پور۔ سکھر میں بڑھتی ہوئی گرمی نے لوگوں کا برا حال کر دیا۔ بڑھتی ہوئی گرمی سے راحت کے لیے لوگوں نے مشروبات کی دکانوں اور ریڑھیوں کا رخ کر لیا ہے۔ سکھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ایک طرف گرم ہوائیں تو دوسری طرف سورج آگ برسانے لگا، لوگ گرمی کی شدت سے بے حال ہو گئے۔ ایسے میں ٹھنڈے مشروبات کی فروخت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہر کے بازاروں اور گنجان آبادی علاقوں میں جگہ جگہ پر آلو بخارے کے لال شربت، گنے کا شربت، فالسے کا شربت اور لیمو پانی کی ریڑھیاں اور دکانیں سج گئی ہیں۔ لوگوں نے ٹھنڈے مشروبات کی ریڑھیوں اور دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ اس موقع پر ٹھنڈے مشروبات استعمال کرنے والوں نے سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہترین چیز ہے، ہم جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں کلاک ٹاور کے قریب تھوڑا سا بھی گرمی کا احساس ہوتا ہے، ہم آلو بخارے کا شربت ضرور پیتے ہیں، کیونکہ گھر کے اندر جب بھی گھنٹہ گھر کے اندر ہم گرمی کے حالات میں آتے ہیں سب سے پہلے سامان لینے سے پہلے لوگوں نے گرمی شدت کو ختم کرنے اور دل کو راحت پہنچانے کے لیے ٹھنڈے مشروبات، آلو بخارے، گنے، فالسے کے شربتوں کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ سندھ میں موسم کی شدت سے بچنے کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا خوب استعمال کیا جاتا ہے۔ ان مشروبات میں سندھ کا مشہور مشروب تھادل ہے، جو حیدرآباد میں بڑے شوق سے پی جاتی ہے۔ جہاں زیب علی کی رپورٹ۔ حیدرآباد میں گرمیوں کے موسم میں سندھ کی سب سے مشہور سوغات تھادل مشروب ہے۔ تھادل کی تیاری میں بادام، پستے، پانچوں مغز، کالی مرچ اور گڑ اور دیگر لوازمات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تھادل کو سندھ بھر کے علاوہ حیدرآباد میں بھی بڑے شوق سے پی جاتی ہے۔ حیدرآباد شہر میں بھی مختلف مقامات پر تھادل فروخت کی جا رہی ہے، جہاں لوگ سندھ کے اس روایتی مشروب سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تھادل مشروب گرمیوں کے موسم میں ہی فروخت کی ہوتی ہے۔ اس مشروب کو پینے سے جہاں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، وہیں جسمانی
जिस्मानी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। बहुत ताकतवर चीज़ है और गर्मी के रोजाना पीते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि इसके अंदर गुड़ है, सौंफ है, खसखस है, दूसरी चीज़ें प्याज भी बुझती है और दूसरी फायदा भी है, थोड़ा से भी सुकून मिलता है। जब भी मैं आती हूँ तो यहाँ पे ये जरूर पीती हूँ और बच्चों के लिए भी लेके जाती हूँ और खुद भी पीती हूँ। हम हर रोज यहाँ से गुजरते हैं, 1-2 गिलास पीते हैं, ठीक है, और घर के लिए ले जाते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि थादल पीने के बाद हमें एक खुशगवार एहसास होता है, क्योंकि थादल मशरूब गर्मी का दुश्मन है और ये दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। थादल बनाने वाले कारीगर का कहना था कि इस मशरूब को बड़ी मेहनत से तैयार किया जाता है। इलाकाई खबरनामा से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sftv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।